Good afternoon, students. Today we'll start with our next unit, that is Unit 5 of Web Technology, Client and Server Frameworks. As we have seen in Unit 1 and Unit 2 is totally based on client-side scripting languages. Unit 3 and Unit 4 is totally depend on server-side scripting languages. Now in Unit 5, they have covered different frameworks that you can use at client-side or at server-side. So here there are three different frameworks we are going to study. One is AngularJS, second is Node.js, and third one is Struts. From that, AngularJS is a client-side framework, Node.js is a server-side framework. So first we'll start with the AngularJS. In AngularJS, we have to study these many points. It's a little bit vast topic of AngularJS because it's having the number of things and number of features available in AngularJS. So here we have to study the overview, that is introduction, then MVC architecture, its different directives, expression, controllers, filters, how to use tables in AngularJS, modules, forms, includes, views, scope, services, dependency injection, custom directive, and internationalization. So these are the different topics that we are going to study within 2 to 3 lectures. Then next is AngularJS introduction. As already we have studied one AngularJS practical in last week. So basic, at least you have understood about AngularJS. I just repeat some basic point. AngularJS is a JavaScript framework. It can be added to an HTML page with script tag. मतलब आप AngularJS का कोड आप HTML के पेज के साथ ऐड करते हो और ऐड करने के लिए आपको जो टैग यूज करना पड़ता है दैट इज अ स्क्रिप्ट टैग. AngularJS extend HTML attribute with directives and binds data to HTML expression. AngularJS works with two main things. One is directive and second is expression. जैसे हम next पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ जाएगा कि ये क्या है. सबसे पहले देखेंगे कि AngularJS को जब आपको HTML पेज के साथ ऐड करना है using script tag तो उसका syntax क्या है. So very simple syntax. You have to use a script space src and you have to provide this source file path. Path है https. सॉरी मैंने उसको क्लिक कर दिया था वो पाथ को. ओके सो इट्स https://ajax.googleapis.com. इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करना जब आप कोड लिखोगे .com/ajax/leap/angularjs/ here it can be a change as I have used 1.6.4. if your browser is updated you can use updated version. if your browser is older you have to use an older version of AngularJS. सो ओल्डर वर्जन है 1.3.14 जो मोस्ट ऑफ काफी सारे ब्राउजर को सपोर्ट करता है. /angular.mean.js एंड देन एंड ऑफ स्क्रिप्ट टैग. अब AngularJS का कोड जब हमको यूज करना है तो उसमें बहुत सारे डायरेक्टिव्स होते हैं. ओके डायरेक्टिव यानी जैसे हम बोलते हैं कि HTML में टैग्स होते हैं, इट्स अ टैग बेस्ड लैंग्वेज, वैसे ही AngularJS इज अ डायरेक्टिव बेस्ड लैंग्वेज जिसमें अलग अलग डायरेक्टिव्स हम HTML के टैग के साथ अटैच करते हैं, ऐड करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं. उसको बोलते हैं ng- डायरेक्टिव. वाई ng-? क्योंकि हर डायरेक्टिव की स्टार्ट होती है ng- के साथ. सो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है ng-app, ng-model, ng-bind, ऐसे बहुत सारे ng-repeat है. तो इसमें से बेसिक जो इम्पोर्टेंट है दिस आर द 3 इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव्स. वन इज ng-app डायरेक्टिव जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बताता है HTML पेज को कि इसके यहाँ पे आपने AngularJS का एप्लीकेशन यूज करना है. Okay, so whenever you want to start an AngularJS application, you have to use or define the directive as an Angular app. So Angular app directive is used to define an AngularJS application. Second is ng model. It's very similar to like your ID or name. जब आप HTML में इनपुट टाइप यूज करते हो, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स या पासवर्ड या रेडियो बटन, तो हर एक इनपुट के लिए जब उसकी वैल्यू रीड करनी है तो इधर उसको आपको एक आईडी देना पड़ता है या फिर नेम देना पड़ता है. लेकिन अगर AngularJS में आपको इनपुट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड करनी है तो इंस्टेड ऑफ आईडी और नेम यू हैव टू प्रोवाइड ng model. So the ng model directive binds the value of HTML controllers like input, select, text area to an application data. Then third, जब हमने इनपुट टेक्स्ट को इसके साथ बाइंड कर दिया, ng मॉडल के साथ बाइंड किया है, तो तीसरा डायरेक्टिव हमको यूज करना पड़ता है दैट इज ng bind डायरेक्टिव
जो it binds the application data to the HTML view. जो डेटा आपने इनपुट बॉक्स का यहाँ पे बाइंड किया है वही डेटा अगर आपको और किसी पैराग्राफ टैग या किसी के साथ अटैच करना है तो आप ng bind यूज करते हो. Now Angular JS is depend on the MVC pattern. ये बहुत important question है, काफी बार examiner external में पूछा जाता है. Like what is MVC pattern and how Angular JS work on a MVC. So MVC is called as the model, view and controller or MVC pattern, and it is popularly called, it is an software design pattern for developing a web application. तो वेब एप्लीकेशन जब आप डेवलप करते हो तो आपका पूरा डिजाइनिंग पार्ट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. इसमें कुछ पार्ट मॉडल में जाता है, कुछ व्यू में जाता है, कुछ कंट्रोलर में जाता है. सो इन मॉडल the code which is required for maintaining a data, means for inserting a data or for storing a data, updating a data, all these operations goes in a model part. View is, as name suggests, it is used for displaying all or portion of data to the user. And controller is actually controlling all your applications, all your data bindings, everything. So it works between model and view. So controller is a software code that controls the interaction between the model and view. Now, as model is responsible for managing the data application and view is for showing the data, means for presenting the data. So data present करने के लिए आप HTML, JSP, ASP, PHP या कोई भी language को use कर सकते हो. And controller is actually for controlling the data, जो हम next जब पढ़ेंगे तो कुछ slides में आपको समझ में आएगा controller क्या करता है. So this is a very simple basic diagram for MVC pattern to show model, view and controller. These all are connected with each other in a two-way data binding. Then next is the AngularJS application. तो ऑलरेडी ये हमने पढ़ लिया है कि AngularJS के 3 पार्ट होते हैं, ng app, ng model and ng bind. ओके, इसका हम डायरेक्टली एग्जांपल देखेंगे. ये स्टेप्स हमने प्रैक्टिकल में ऑलरेडी कवर किए थे, हाउ टू क्रिएट एन AngularJS app and how to run it. So I'm just keeping this and we will just again take one simple example of AngularJS. I have opened a notepad and in notepad I have just added the basic code which is required for AngularJS, जिसमें HTML में head tag के अंदर स्क्रिप्ट टैग मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है. स्क्रिप्ट के अंदर मैंने src के अंदर जो भी फाइल है, सोर्स फाइल, दैट वी हैव एडेड. दिस सोर्स फाइल इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. इसमें कोई भी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेस, एक्स्ट्रा, कैपिटल, स्मॉल मत कीजिए, नहीं तो आपका कोड रन नहीं होगा. ओके, जैसा मैंने लिखा एज इट इज यू हैव टू राइट डाउन, डबल कोड से लेके हर चीज. Then head tag complete किया. Now we have to write down a AngularJS code in a body tag. So very first we have to use is a one directive. Very first directive is a ng app directive. अभी हम लोग कंट्रोलर का कोड नहीं ऐड कर रहे हैं, इसके लिए हम ऐप को कोई नाम नहीं दे रहे. वी आर जस्ट डिक्लेयरिंग दैट दिस इज एन AngularJS एप्लीकेशन बट नो नेम आई एम करंटली एडिंग. हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तब आपको और एडवांस वर्जन बताऊंगी जिसमें हम ng ऐप में नाम भी ऐड कर रहे हैं, ng कंट्रोलर भी ऐड कर रहे हैं, एक्सेट्रा. सो ng ऐप ब्लैंक कर दिया. इसमें हमने डाल दिया लाइक इंटर योर नेम और यहाँ पे मैंने डाल दिया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट. और यहाँ पे नेम या आईडी के बजाय हमको जो सेकेंड डायरेक्टिव यूज करना है दैट इज ng मॉडल डायरेक्टिव. इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने T1 एज इट इज जो हम लोग नाम यूज करते हैं वो आपने नाम यहाँ पे दे दिया. सो फॉर दिस टेक्स्ट बॉक्स वी हैव गिवन अ AngularJS डायरेक्टिव एंड गिवन द नेम एज अ T1 ng मॉडल. अब जो डेटा हम इनपुट बॉक्स में डिस्प्ले इंटर कर रहा है यूजर, वही अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर चीज के साथ उसको बाइंड करना है, मतलब जैसे पैराग्राफ टैग के साथ बाइंड करना है, टेबल के साथ बाइंड करना है, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर इमेज के नीचे कोई टेक्स्ट है उसके साथ बाइंड करना है. सो यू कैन बाइंड दिस डेटा एनीवेयर. यहाँ पे अगर हमने डाल दिया नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे डाल दिया यू इंटर्ड नेम एज, ओके, और यहाँ पे मैंने ले लिया पैराग्राफ टैग और इसके आगे मैंने अटैच कर दिया यूजिंग डायरेक्टिव ng bind इक्वल टू
ओके, टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है वो किस में स्टोर होने वाला है, T1 में। सो यही नाम मैंने यहाँ पे ng bind में अटैच कर दिया। ओके, और जस्ट इसको हमने सेव किया। इसको जाके अभी रन करेंगे। .html से यू हैव टू सेव एंड देन रन दिस। सो यहाँ पे आप देखोगे कि हम लोगों ने एक यहाँ पे डाल दिया एंटर योर नेम, एक टेक्स्ट बॉक्स दे दिया। यहाँ पे जैसे मैं डाल रही हूँ कुछ नेम यहाँ पे हम डाल रहे हैं। सो यू कैन सी वॉट एवर द नेम आई एम एंटरिंग हियर, इट इज ऑल्सो डिस्प्लेइंग रियल टाइम इन अ नेक्स्ट लाइन, क्योंकि ये इनपुट टेक्स्ट बॉक्स का जो डेटा है वो मैंने यहाँ के पैराग्राफ टैग के साथ क्या किया है, इसको यहाँ पे अटैच किया। आपको लग रहा है कि इस डेटा को कलर प्रोवाइड करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ कलर और यू कैन ऑल्सो मेक इट अ बोल्ड, और उसका फॉन्ट साइज आपको लग रहा है चेंज करना है। सो ये आप कोई भी CSS का कोड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया स्टाइल इक्वल टू कलर कोलन, देखते हैं लेकिन ये वर्क करता है कि नहीं, डोंट नो, विल जस्ट सी। या इट्स वर्किंग। सो पैराग्राफ टैग के साथ मैंने इस ng bind को, ng मॉडल के डेटा को यहाँ पे ng bind किया, प्लस उसके साथ मैंने कलर अटैच किया। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल कोड ऑफ AngularJS। क्या किया हमने, हेड टैग में एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करके AngularJS की जो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क का जो पाथ है वो अटैच किया। ng ऐप डायरेक्टिव ऐड किया। नाउ यू कैन ऐड दिस डायरेक्टिव एनीवेयर। जैसे मुझे लग रहा है कि ये पूरे बॉडी टैग के साथ नहीं ऐड करना है, मैंने एक div टैग ऐड कर दिया और यहाँ पे ऐड कर दिया उसको, और यहाँ पे div टैग को क्या किया मैंने, सपोज एंड किया। ओके, अब इसके बाद मैं वापस यहाँ पे सेम चीज कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आफ्टर div टैग, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, यानी आपको समझ में आएगा, बिफोर div टैग। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ जब नाम डाल रही हूँ, यू कैन सी कि div टैग के पहले का जो पैराग्राफ है सिर्फ वहां पे ये नाम एंटर हो रहा है, लेकिन div टैग के बाद यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। वाई इट इज नॉट कमिंग, क्योंकि हमने ng ऐप AngularJS को किसके साथ अटैच किया है, div टैग के साथ। और जैसे div टैग खत्म हो जाएगा, इसका मतलब AngularJS का जो कंट्रोल है, उसका जो भी वर्किंग है वो यहाँ पे खत्म हो गया है इस एरिया में। इसके बाद अभी आपका कोई भी ng bind, ng मॉडल, कोई भी चीज वर्क नहीं करेगा। सो यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है। अब सेकेंड चीज, मुझे लग रहा है दोनों जगह पे वर्क करना चाहिए। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कोड है, ये कोड उठा के मैंने बॉडी टैग के अंदर डाल दिया। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ इट इज कमिंग एट बोथ बिफोर बी div टैग एंड आफ्टर div टैग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने ng ऐप किसके लिए एप्लीकेबल कर दिया, पूरे बॉडी टैग के लिए, लेकिन स्टार्ट से लेके एंड तक, जब तक बॉडी टैग खत्म नहीं होते वहां तक AngularJS ऐप वर्क करने वाले। यू कैन यूज ng मॉडल, ng bind एनीवेयर इन whole body code. Okay, so this is how a simple example of AngularJS, and we have seen the 3 directives here. इस कोड में हमने 3 directives देखे हैं। One is ng app directive, second is ng model directive which we have attached with the input tag, and third is ng bind directive जो क्या कर रहा है, इस ng मॉडल में जो डेटा है उसको ये बाइंड कर रहा है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ टैग के साथ। तो ng मॉडल में जो नाम लिया है हमने T1, ng bind में भी सेम नाम हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया, सपोज T2 किया, और यहाँ पे मैंने नाम चेंज ही नहीं किया दोनों जगह पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ डेटा नीचे आएगा नहीं। ओके, इट इज नॉट गोइंग। अब तक यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर चीज आ रही है। अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, कुछ नहीं आ रहा है। ओके, why it is not coming, because here the model, ng model में नाम मैंने T2 दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं bind T1 के साथ कर रही हूँ, and he is not able to find the T1 tag, so it is not showing that data. Okay, so this is how your AngularJS basic code works. Apart from these 3 tags, 3 directives, you can also use you get directives. We can also use a expression, we can also use a controllers. Okay, so now we'll see the like, हाँ देखो अब यहाँ पे जैसे ng ऐप हो गया,
एनजी ऐप के बाद एनजी मॉडल हो गया, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने ये एक्सप्रेशन टैग यूज किया है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सप्रेशन टैग। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल में मैंने कैलकुलेटर का कोड दिखाया आप लोगों को, कैलकुलेटर डिजाइन यूजिंग एंगुलर जेस, तो जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक्सप्रेशन टैग को यूज किया हुआ है। सपोज यहाँ पे हमको एक्सप्रेशन टैग को यूज करना है, सो वी विल just change the code little bit। यहाँ पे हम डाल देंगे इंटर फर्स्ट नंबर, ओके, एंड डाल दिया यहाँ पे इंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे नाम डाल दिया मैंने T2 एनजी मॉडल में। और यहाँ पे सपोज हमको आउटपुट शो करना है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया आउटपुट ऑफ लाइक एडिशन इज, ओके। और एक्सप्रेशन टैग इज एक्चुअली मेक अ like mathematical operations on your data। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट डेटा T1 के अंदर है, यहाँ पे मैंने सिंबल ले लिया T प्लस का एंड यहाँ पे डाल दिया T2, सेव किया कि इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे डाल दिया 33, ओके। अब ये ऑलरेडी ये वैल्यू इसके साथ बाइंड है, तो तुरंत फर्स्ट वैल्यू आ गई, लेकिन जैसे मैं सेकेंड वैल्यू डालूंगी, ओके, तो ये उसके आगे अटैच हो गई। नाउ इट हैज नॉट गिवन मी द एडिशन, इट हैव डन द कॉन्केटिनेशन। व्हाई? बिकॉज हियर आवर इनपुट टाइप इज टेक्स्ट बॉक्स। इफ वी वांट टू मेक इट एज अ वर्क एज अ एडिशन, सो वी हैव टू मेक इट एज अ नंबर। So now if I giving the same value, so instead of concatenating, it is making a addition of that two numbers. So this is how your expression tag works. So you can use like plus, minus, multiplication, division, all kind of symbol you can use for expression tag. Again, apart from your additional mathematical expression, you can also use a expression tag. It will work like your object, या फिर एरे के अंदर आपने अगर कोई डेटा स्टोर किया है, तो उस डेटा को रीड करने के लिए, जैसे हम एरे नेम डॉट, मतलब यानी ऑब्जेक्ट के लिए एरे नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम और ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, तो ऐसे ही आप लोग इसको कोई भी ऑब्जेक्ट का वैल्यू रीड करने के लिए भी आप डायरेक्टली इसको एक्सप्रेशन टैग में डालोगे, तो ये फाइंड आउट करेगा कि कंट्री नाम का कोई ऑब्जेक्ट है क्या क्रिएट किया हुआ, और उसमें नेम वाली जो प्रॉपर्टी रहेगी उसकी वैल्यू वो क्या करेगा, प्रिंट करके प्रोवाइड करेगा। So I hope you understood like expression tag। यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग दिए, अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन के लिए यूज होगा। अगर टेक्सचुअल वैल्यू है तो ये दो टेक्स्ट वैल्यू को कॉन्केटिनेट करने के लिए यूज होगा। इफ योर डेटा इज इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाएगा। अगर आप इसको एरे पे वर्क कर रहे हो, जैसे मार्क्स इज अ वन काइंड ऑफ एरे, तो एरे की किसी वैल्यू को डायरेक्टली रीड करने के लिए और उसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए भी एक्सप्रेशन टैग को यूज किया जाता है। सो दिस इज हाउ द एक्सप्रेशन टैग वर्क्स विथ नंबर, विथ स्ट्रिंग, विथ ऑब्जेक्ट्स एंड विथ एरे। सो ऑलरेडी वी हैव सीन द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन। अभी यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली वैल्यू डाली है, हमने वैल्यू के बजाय क्या किया था, वैल्यू रन टाइम यूजर से लिया था। अगर यूजर से लेने के बजाय मैं यहाँ पे डाल दिया 5 प्लस, सो इट विल बी अ स्टैटिक, ओके। तो यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे तो डायरेक्टली उसने 5 प्लस 5 एडिशन दे दिया, लेकिन यहाँ पे जब मैं वैल्यू डालूंगी तो उसका कोई असर यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सप्रेशन में से T1 T2 निकाल दिया है। इफ यू पुट T1 T2 इट विल गिव यू द एडिशन ऑफ दिस टू नंबर्स। होप इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल यू कैन आस्क, क्योंकि हम इसके बाद कंट्रोलर का कोड स्टार्ट करेंगे विच विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट देन व्हाट वी हैव सीन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज टिल द टाइम यू कैन आस्क मी। Do you have any queries, students? No. No, ma'am. Okay, so I hope you understood it. Okay, very good. That's great. Now next part we will going to see is a AngularJS with controller, क्योंकि हमने देखा है कि AngularJS वर्क करता है मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर में।
अब तक हम लोगों ने सिर्फ व्यू एंड मॉडल दो ही पार्ट देखे हैं. ओके, इसमें हमने कंट्रोलर अभी तक ऐड ही नहीं किया है. सो नाउ we will add a controller here. So to add a controller we require a directive which is called as a ng controller directive. और ng कंट्रोलर के साथ जब भी आप कंट्रोलर का कोड ऐड करते हो, सो कंट्रोलर एक्सेप्ट्स वन पैरामीटर which is an inbuilt parameter which is called as the dollar scope. Dollar always indicate that it is an inbuilt parameter or inbuilt variable of AngularJS. तो डॉलर स्कोप ये इनबिल्ट वेरिएबल है जिससे आप डेटा जो है ये मॉडल और व्यू, मॉडल और कंट्रोलर एंड व्यू, इन तीनों में डेटा को पास ऑन कर सकते हो. यानी कोई भी एक वेरिएबल एक जगह पे डिक्लेयर किया लेकिन उसको आप दूसरी जगह पे एक्सेस कर सकते हो. मतलब मॉडल में डिक्लेयर किया, व्यू में एक्सेस कर सकते हो, या व्यू में डिक्लेयर किया लेकिन आप कंट्रोलर में उसको यूज कर सकते हो. तो ये तीनों एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से साथ में वर्क करते यूजिंग एन डॉलर स्कोप. सो एक्चुअली हाउ इट वर्क्स. ओके, तो यहाँ पे ये कोड दिखाने के बजाय में डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग कोड, छोटा सा कोड ऐड करते हैं. ओके, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया समझ में आएगा कि जनरली इसको कैसे अटैच किया जाता है एक दूसरे के साथ. तो सबसे पहला फर्स्ट चेंज क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, मैं ये इतना कोड निकाल देती हूँ फिलहाल. यहाँ पे हमको पहले जैसे हम लोगों ने ng ऐप लिखा है, ये बॉडी में से हटा दिया मैंने. ओके, और यहाँ पे एक div टैग लिखा, जहाँ पे अभी ng ऐप को मैंने कुछ तो नाम देना है. सपोज मैंने नाम दे दिया A1. Apart from that, I have to add a controller that is ng controller. ng ऐप में मैंने डबल कोट में नाम दे दिया, पहले हम लोग ब्लैंक रख रहे थे. सेकेंड अभी ng कंट्रोलर लिखा है, यहाँ पे आप कंट्रोलर को कुछ एक नाम प्रोवाइड कर दो, जैसे मैंने C1 नाम दे दिया. यू कैन गिव अ more sensible name also. Okay, I am just giving a very simple name here. After that, suppose यहाँ पे मैंने ले लिया like input type equal to टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी ले लिया हमने. और टेक्स्ट बॉक्स के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, ng मॉडल यूज करते हैं. और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया लाइक T1 नाम दे दिया. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने डाल दिया लाइक एक br टैग ले लेते पहले हम. और यहाँ पे डाल दिया माई नेम इज, एंटर योर नेम. सेम कोड ले रहे हैं हम लेकिन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे डाल दिया माई नेम इज, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में अब मैं एक्सप्रेशन टैग यूज कर रही हूँ. ओके, इंस्टेड ऑफ ng बाइंड हियर आई एम यूजिंग एक्सप्रेशन टैग. और यहाँ पे मैंने डाल दिया T1. तो T1 में जो डेटा स्टोर होगा वो यहाँ पे आना चाहिए. ओके, सेव किया, फिलहाल रिफ्रेश किया. ओके, अब ये मैंने बाइंड नहीं यूज किया है. अब मैं यहाँ पे कुछ लिख भी रही हूँ तो भी वो नाम जो है यहाँ पे जो लिखी हुई चीज है यहाँ पे रिफ्रेश यहाँ पे आ नहीं रही है. ओके, व्हाई इट इज नॉट कमिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है कि आई एम यूजिंग एन कंट्रोलर. मतलब इसके पहले क्या हो रहा था, देखो अब मैं यहाँ से ना ये चीज को हटा देती हूँ, कोई डिफरेंस समझ में आएगा. कंट्रोलर निकाल दिया. ओके, अब रिफ्रेश किया. अब डेटा क्या हो रहा है, जो मैं डाल रही हूँ इट इज शोइंग हियर नाउ. अब मैंने इसको क्या चेंज किया, ऐप को नाम दे दिया और कंट्रोलर का कोड ऐड किया. जैसे मैंने ये ऐड किया अब ये बाइंड नहीं हुआ. ओके, बिकॉज यहाँ पे मैंने कंट्रोलर ऐड किया. तो कंट्रोलर जब आप ऐड करते हो तो ये T1 की वैल्यू उसको मिलनी चाहिए कंट्रोलर के थ्रू, ना कि व्यू के थ्रू. अब ये पूरा कोड एज अ व्यू है, ये पूरा कोड क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये सिर्फ व्यू है. तो अब यहाँ पे T1 को जो डेटा है ये व्यू से नहीं आएगा, ये कंट्रोलर से हमको पास करना है, क्योंकि हमने बोला है कि हम इस कोड में कंट्रोलर ऐड कर रहे हैं. तो नाउ हाउ टू ऐड अ कंट्रोलर कोड. अब यहाँ पे div टैग एंड किया है, मतलब जो ng ऐप का जो भी वर्किंग है ये यहाँ तक ही, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा. अब मुझे कंट्रोलर का कोड जब ऐड करना है, यू हैव टू ऐड अ स्क्रिप्ट टैग देयर. अगेन we are adding a script tag 2 times. See, first script tag to add a source file of AngularJS and second script tag to add the controller code. Controller code हम लोगों ने ऐड किया like var app equal to angular dot I am adding a module. ओके, अब मॉड्यूल के अंदर मुझे यहाँ पे जो मैंने ng ऐप में जो नाम दिया है ऐप के लिए
वही नाम मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको बाइंड करना है, अटैच करना है। यानी मैं बोल रही हूँ कि एप्लीकेशन जो है एंगुलर जेएस का एप्लीकेशन, उसका नाम क्या है, A1, जो यहाँ पे मैंने नाम दिया है। ओके, एंड आफ्टर दैट this is an like if you want to take any runtime argument for that, currently we are not using it, तो मैंने इसको blank कर दिया. After everything you have to add a semicolon like as it is a JavaScript. After that यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाया है ऐप नाम का, यहाँ पे मैंने ले लिया ऐप डॉट, अब यहाँ पे मैं कंट्रोलर ऐड कर रही हूँ. ओके, अब कंट्रोलर का नाम क्या दिया है ऊपर हम लोगों ने एनजी कंट्रोलर में, कंट्रोलर नेम इज C1, तो वही नाम हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया C1. देखो बाइंड कैसे हुआ है, एनजी ऐप का नाम हमने यहाँ पे पुट किया और कंट्रोलर का जो नाम है वो हमने कंट्रोलर के आगे ऐड कर दिया. Okay, now in a controller we have to write down a function. Every time whenever you are adding a code of controller, you have to add a name of controller and you have to add a function, जिस function में आपको actual controller का code जो है वो लिखना रहता है. Okay, और इस function के अंदर एक ready-made inbuilt variable या ऑब्जेक्ट जो है हम वेरिएबल पास करते हैं, जो इनबिल्ड वेरिएबल है एंगुलर जेएस का, जिसको हम बोलते हैं स्कोप. तो यहाँ पे फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल को पास किया, कंट्रोलर यहाँ पे स्टार्ट किया, बट मैं इसको यहाँ पे एंड नहीं कर रही हूँ. ओके, इसको हम एंड करने वाले हैं बाद में. ओके, सो कंट्रोलर यहाँ पे ऐड किया, इसको मैंने एंड किया, यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया. इसके अंदर हमने फंक्शन लिखा है, तो फंक्शन का कोड हमको लिखना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हमने ले लिया डॉलर स्कोप, जो वेरिएबल का नाम अपने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है इनबिल्ड वेरिएबल, वही लेना है. डॉट, किसकी वैल्यू हमको पास करनी है, यहाँ पे किसकी वैल्यू हमको पास करनी है, T1 की. तो जो चीज हमने यहाँ पे लिखी है T1, वही चीज हमको यहाँ पे लेने. सी इट इज यूज टू बाइंड दिस एप्लीकेशन, मीन्स दिस व्यू विद दिस कंट्रोलर. दिस इज योर व्यू कोड एंड दिस इज योर कंट्रोलर कोड. तो दोनों के बीच में एक हमने नाम यूज किया है जो हम पास करने वाले, और वो पास इन दोनों के बीच में कौन सा वेरिएबल पास करवाएगा, इनबिल्ट डॉलर स्कोप वेरिएबल. तो यहाँ पे हमने डाल दिया T1 एंड इक्वल टू, हमको अगर स्टार्टिंग में कोई वैल्यू आपको दिखानी है तो आप स्टार्टिंग की वैल्यू भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे शो कर सकते हो, एंड सेमीकोलन. अब यहाँ पे मैंने इसको रन किया. सो व्हाट हैपन, यहाँ पे हमने T1 के साथ एक वैल्यू अटैच की. तो यहाँ पे व्यू में जहां जहां पे भी T1 आ रहा है, एक आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर और एक माय नेम के अंदर, तो दोनों के साथ ये T1 की वैल्यू रन टाइम पे अटैच हो गई. टेक्स्ट बॉक्स के साथ भी वो वैल्यू दिखाई दी और माय नेम के आगे भी ये वैल्यू दिखाई दी. अब यहाँ पे जाके अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, so now it is working, now it is binded with this. Okay, how it is binded, it is binded through the controller. I hope you understood the code of controller. I will explain again once a time for you. कंट्रोलर में क्या किया जाता है, जब आप कंट्रोलर का कोड ऐड करते हो तो आपका एंगुलर का कोड ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. ओके, मॉड्यूल, व्यू एंड कंट्रोलर. सो मॉड्यूल का काम होता है, पहले व्यू का काम होता है कि जो भी डेटा है यूजर को डिस्प्ले करना है. सो डिस्प्ले करने के लिए जो कोड है वो आ जाता है व्यू पार्ट में. सी यार, हम यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करने का कोड लिख रहे हैं, लेकिन ये डेटा को यहाँ पे बाइंड करना है या इसको प्रोवाइड करना है या डेटा मेंटेन करना है, तो ये सब चीजें यहाँ पे आ रही है. कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक मॉड्यूल बना दिया, ये व्यू हो गया, ये मॉड्यूल बना दिया. मॉड्यूल में हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर व्यू को अटैच कर दिया. अब इस व्यू के साथ, अब इस मॉड्यूल के साथ हमने किसको अटैच कर दिया, कंट्रोलर का. सो दिस इज योर व्यू पार्ट, दिस इज योर मॉड्यूल पार्ट एंड दिस इज योर कंट्रोलर पार्ट, एंड तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं वे में एक दूसरे से कनेक्टेड है. यहाँ पे एनजी ऐप के साथ जो आपने नाम दिया रहेगा एप्लीकेशन का, तो मॉड्यूल के अंदर आपको वही नाम यहाँ पे कैरी करना है. एनजी कंट्रोलर के साथ आपने जो नाम दिया रहेगा, तो इस कंट्रोलर में आपको सेम नाम यूज करना है. और ये ऐप मतलब क्या, जो मॉड्यूल के लिए आपने मॉड्यूल डिक्लेयर करने के लिए जो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ऐप, कोई भी नाम ले सकते हो आप, मैंने ऐप लिया है, तो उसके साथ ही आपका कंट्रोलर अटैच होगा. कंट्रोलर का नाम सेम आ गया. हर कंट्रोलर के साथ हमको एक हमेशा फंक्शन लिखना पड़ता है, जिस फंक्शन के अंदर हम कोड लिखते हैं. इन दैट फंक्शन वी हैव टू डिक्लेयर वन फंक्शन, वी हैव टू डिक्लेयर वन variable, but this is an inbuilt variable of AngularJS, so it start with a dollar, and dollar scope is an inbuilt
thing which is provided for to make a communication between model, view and controller. Now in that function we are using a dollar scope and we have to attach a name of ng model. Whatever the ng model name you have used here, you have to attach this and you can pass some value. Whatever the value you have written here, this is passed to the T1 in a view. So view में T1 जहाँ जहाँ पे भी दिखाई देगा वहाँ पे हर जगह पे ये value यहाँ पे bind हो जाएगी. Okay. So I hope you understood this, students. Yes, ma'am. कोड लिखने के लिए आता है छोटा सा. So this is a very simple one code. You can take a screenshot also for this code. मॅम Yes. मॅम तिथे तुम्ही भावना किंवा सर मॅम तिथं नाव लिहिलेलं आहे तर मग आपण ओनली डबल कोट देऊ शकतो का? हो देऊ शकतात ना. त्याच्यामुळे काय होणार, काहीच व्हॅल्यू पास नाही होणार तुमची. जसं आपण रिफ्रेश केलं तर ब्लँक झालं. नाउ इट इज वर्किंग. So if you want to pass anything then it is fine. If you are not passing anything तो it will take a blank value. लेकिन इसका सिर्फ यूज क्या है कि हमने कंट्रोलर को बोल दिया कि कोड किसके साथ अटैच करना है, T1 के साथ इसको क्या कर दो, अटैच कर दो. तो अब ये T1 जहां जहां पे भी आएगा वो एक दूसरे से क्या हो गए, एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए. दैट्स इट. ओके. ओके मॅम. या. एनीथिंग एल्स इफ एनीवन वांट टू आस्क? कोड करके देखो. ये सबसे छोटा कोड है जो मैंने यहाँ पे लिखा है. ओके. और ये कोड आप सब जितने भी एंगुलर.js के एग्जाम्पल, ये आप छोटे छोटे एग्जाम्पल सब करके देखो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे ना तो काफी सारे छोटे छोटे कोड लिखने के लिए आते हैं एंगुलर.js में. तो एटलीस्ट एक बेसिक वाला कोड जैसे मैंने बताया जिसमें ng ऐप, ng मॉडल और ng बाइंड का यूज हमने किया था. फिर सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें हमने एक्सप्रेशन का यूज किया. थर्ड एग्जाम्पल जिसमें कंट्रोलर कैसे ऐड करना है, ये अभी हम लोगों ने सीखा है. ओके. अब नेक्स्ट हम एक छोटा सा और एक कोड देखते हैं. बहुत बहुत ब्यूटीफुल कोड है कि जिसके साथ हम लिस्ट टैग जो है, HTML का लिस्ट टैग जो है उसको आप अटैच कर सकते हो. देखो यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, ये सब निकाल देती हूँ यहाँ पे और ये एज इट इज रखती हूँ. और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया. यहाँ पे मैंने डाल दिया लिस्ट. ओके. और लिस्ट में अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक एरे प्रोवाइड कर रही हूँ. सपोज मैं डाल दिया लाइक एप्पल. सो एक एरे आई हैव यूज्ड. ओके. तो उस डॉलर स्कोप के साथ मैंने एक एरे अटैच किया और इस एरे को नाम क्या दे दिया, लिस्ट. अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट में से 1 by 1 वैल्यू को रीड करना है और उसको यहाँ पे प्रिंट करना है इन द फॉर्म ऑफ बुलेट. तो बुलेट मतलब लिस्ट के अंदर. सो इन HTML लिस्ट टैग पता है आपको, दो लिस्ट टैग है, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट. सपोज हमको अनऑर्डर, क्योंकि बुलेट में चाहिए तो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लिया. और हर UL के अंदर हमको हर वैल्यू के लिए हम क्या अटैच करते हैं, LI टैग अटैच करते हैं, दैट इज लीस्ट आइटम. ये तो अभी आपको याद होगा कैसे किया था हम लोगों ने. ओके. तो ये कर दिया. लेकिन अब ये हर एक लिस्ट जो है ये मुझे कहाँ से लेनी, फर्स्ट वैल्यू आनी चाहिए एप्पल, सेकेंड वैल्यू आनी चाहिए बनाना, थर्ड ऑरेंज. तो मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू, तो मैं कितनी बार लिस्ट टैग लिखूंगी, नो आई कांट अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें वैल्यू बढ़ भी सकती कम भी हो सकती लिस्ट के अंदर. तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा टैग हमको प्रोवाइड करके दिया हुआ है एंगुलर.js ने, दैट इज ng रिपीट. रिपीट मतलब ये फॉर लूप के जैसा वर्क करता है एरे के ऊपर. इक्वल टू एक वेरिएबल ले लिया हमने, कोई भी एक ले लो, लाइक हमने ले लिया x इन, और अभी यहाँ पे हमने इसको नाम क्या दिया हुआ है, एरे को लिस्ट. तो यहाँ पे मैंने डाल दिया लिस्ट. ये क्या करेगा, लिस्ट में से रिपीटेडली 1 by 1 वैल्यू रीड करेगा जब तक उसको लास्ट वैल्यू नहीं मिलती है. ओके. और ये वैल्यू हमको क्या करनी है, लिस्ट के साथ प्रिंट करनी है. तो कोई भी चीज अगर हमको डायरेक्टली प्रिंट करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, एक्सप्रेशन टैग यूज करते हैं. और एक्सप्रेशन में अभी लिस्ट की वैल्यू 1 by 1 किसके अंदर स्टोर हो रही है, x के अंदर. तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया लाइक x. ओके. इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया. सो यू कैन सी फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू लिस्ट के अंदर प्रोवाइड कर दिया. अभी UL के बजाय अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑर्डर लिस्ट, सो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर लिस्ट में डेटा आ गया. यहाँ पे अगर मैंने कोई वैल्यू इंक्रीज भी कर दिया लाइक
कोई नया वैल्यू ऐड कर दिया तो भी ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वैल्यू को रीड करते जाएगा। अब इसके आगे का आप थोड़ा एडवांस कोड जिसको इंटरेस्ट है वो क्या कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये मैंने प्रोवाइड की है, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन टेक अ वैल्यू फ्रॉम इनपुट बॉक्स में से वैल्यू लो यूजर से, जो वैल्यू वो देगा वो यहाँ पे लिस्ट में अटैच होनी चाहिए और वो वैल्यू बाद में यहाँ पे लिस्ट पे दिखना चाहिए, मतलब ये वैल्यू में यूजर से लेना चाहिए। So this is called as a dynamic programming. This is a static one, but कैसे आप ng repeat को use कर सकते हो वो मैंने बताया। So we have seen a different directives. One is ng app directive, second is ng controller directive, then ng repeat directive, after that ng bind, ng model. 5 अलग-अलग directives हम लोगों ने देखे हैं। Apart from that, we have seen how to add a code of controller. Apart from that, we have also seen what is the use of $scope and how to attach a data or bind a data of view to controller using this $scope object or variable. Okay, so ये जितने भी examples है, I hope you will complete run this. हमारा जो next lecture है, कोई तो एक जन खाली screenshot लेके भेजो मुझे attendance का please, क्योंकि मैंने लिया नहीं है स्क्रीनशॉट, और चैट में मत डालो क्योंकि अभी तक मैं सब ठीक है चैट में डाला है बहुत लोगों ने, बट स्टिल टेक अ स्क्रीनशॉट। और अगर आपकी कुछ रन करके देखो कोड को, हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है 2:30 2:30 हम नेक्स्ट इसके आगे के एग्जांपल्स जो है एंगुलर जेएस के वो देखेंगे। तब तक एक स्मॉल कोड रन करके देखो, यानी अगर कुछ एरर आता है तो वी कैन रिजॉल्व दैट एरर इन आवर लेक्चर। Do you have any question or should I end the meeting? Anyone? Do you have any question? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay.